Friends, welcome to all of you. Uh, of course, I'm ready here before you with the Hindu newspaper, today's newspaper. And of course, if you're a book lover, I have got one fantastic book, but only you go through this book if you're an advanced learner, if you have all the basic knowledge of grammatical terms, you have better vocabs. And so this book is not meant for, you can say junior level. Okay, this absolutely is from upper intermediate level to advanced level, you can say. So this is the book, especially for upper intermediate level to advanced level. You can see Troyer's English, Benjamin Troyer, and this is one of the fantastic book where you will find what's special about this book. Let me tell you, when you go through this book, you will find the discussion about the modern, state of English language and how English language actually have been used in different books by different writers, and where they have committed mistakes and where they could have done better. Okay, so such type of discussion you will find, and of course some of the words, advanced level use, appropriate use, and how the language is turning, moving with the current times. So such type of discussion you will find. Okay, and so this is the book which is of course worthy, okay, you can say worthy of reading. And now if you're intermediate level student, and so if you want to have fun, okay, by reading, if you have become bored by some sophisticated books, okay, classical books, so this is the book which will give you some fun, because the language, the kind of sentence it will been used here is just funny and rough, you can say. Not rough, you can say, actually it's not polished that much. Okay, words are not that much polished the way we normally talk among our friends. So such type of language has been used here. Okay, some of the word by the headline. Okay, front words say you can understand. Okay, so you can have some laugh better. Okay, so the subtle art of not giving a fuck. जैसे हम लोग कहते हैं अरे दिमाग क्या खा रहा है ना, मतलब मैं इसकी परवाह नहीं करता किन चीज़ों की, मतलब एक ऐसा अप्रोच जो जीवन में आप कहते हैं ना, बिंदास होकर के जो चलने वाली बात है ज़िंदगी में, तो काफ़ी चर्चा है इसमें उस तरह का। और इसमें ये भी दिया गया है कि कैसे आजकल लोग खुशी ढूंढते ढूंढते और दुखित हो जाते हैं, और कैसे इंसान हमको सुधरना है, इस बात पर फोकस करते करते कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाते हैं वो, है ना। तो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि किस तरह से हमको, जब हम अपने हैप्पीनेस पर फोकस करते हैं, इंप्रूवमेंट पर टू मच फोकस करते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तो किस तरह से वो निगेटिव चला जाता है, इस बात की भी चर्चा है। और शानदार हिटिंग मतलब वे में लिखा गया है कि इट विल हिट योर माइंड डायरेक्टली, ओके, इनडायरेक्टली आपको नहीं समझाएगा ये। So this is one of the books that you can go, okay. Counterintuitive approach, counterintuitive approach to living a good life, Mark Manson. So this is a book you can go through, a fantastic book. Now, if you talk about today's newspaper, so I have got some words of today's newspaper that you can go, and most of the words would be you would be aware of. Okay, so view. The first word is view. There is a which are opinion. Oh, that view. What's your view? What's your take on? What is your take on the issue? Jabs. It has got two meanings. मुक्का प्रहार या इंजेक्शन के सेंस में भी jabs. Pandemic जानते ही हैं, महामारी। Pandemic का अर्थ होता है महामारी। महामारी स्क्रैप कर देते हैं किसी चीज को, इट मीन्स आप रिमूव कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, थ्रो अवे कर देते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं। गेट रीड ऑफ समथिंग, किसी चीज से छुटकारा पा लेना, वो भी हो गया। डू अवे विथ मतलब भी हो गया, वही सेंस देता है रिमूव। सो स्क्रैप करता है गवर्नमेंट, अगर किसी चीज को रूल को स्क्रैप कर दिया, इसका मतलब उसको एकदम से मतलब वो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सप्लीमेंट्री, बॉडी जब बिल्डिंग करते होंगे आप, जो भी लोग जो फिटनेस फ्रीक हैं, बॉडी बिल्डिंग में लगे हुए रहते हैं, तो आपने सुना होगा कि सप्लीमेंट्री डाइट वो लेते रहते हैं। सप्लीमेंट्री, ओके, प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन वो खाते रहते हैं मसल को बिल्ड करने के लिए। सो एडिशनल, सप्लीमेंट्री इज एडिशनल। हिंदी इफ यू okay, if you have some interest within the two while going through English, तो अतिरिक्त। ग्रांट्स, अनुदान जानते ही होंगे। ग्रांट्स का जो है सरकार जो किसी चीज के लिए फंड प्रोवाइड करती है, ग्रांट्स। एंड देन ग्रांट्स के दूसरा देखिए मैंने किस तरह से यूज है यहाँ पर, टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड।
अगर किसी चीज़ के आप जो है वैल्यू को नहीं समझते हैं कि मतलब और उसको सही से आप केयर नहीं कर पाते हो तो डोंट टेक समथिंग ग्रांटेड। तो ये उस तरह से आप बोलते हैं कि डोंट इट ग्रांटेड, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना? कि इसको समझदारी से यूज़ करो, ऐसा नहीं कि बस ऐसा ही है, ऐसा समझ लो। टेक समबडी फॉर ग्रांटेड यानी किसी लोगों को वैल्यू नहीं दे रहे, आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं, है ना? समझ नहीं पा रहे समय पर, तो इसका मतलब है कि आप उसको ग्रांटेड ले रहे हैं। टेक समबडी फॉर ग्रांटेड। नॉन कोर हो गया, कोर एसेट्स होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं, है ना? जो वैल्यूएबल पार्ट होता है आपके एसेट्स का, उसको कोर एसेट्स कहेंगे। और जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, विच इज नॉट द मेन, नॉट सो इम्पोर्टेंट, एंड ये ऐसा समझ लिया, एसेट्स दैट इज नो लॉन्गर एसेंशियल या दैट इज नो लॉन्गर यूज्ड इन बिजनेस, जो बिजनेस में अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है जिस एसेट्स का। कोई ऐसा एसेट्स है, एसेट्स मतलब सिर्फ पैसे नहीं होते दोस्तों, एसेट्स मतलब बहुत सारी चीजें। अगर एयर इंडिया के एसेट्स की बात करें तो उसके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एसेट्स ही है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी है उसका सारी चीज इन्फ्यूज करते हैं किसी चीज को, मतलब उसमें आप डाल देते हैं, है ना? परवेट मतलब स्प्रेड आउट कर देते हैं, उसमें फिल करते हैं और उसका प्रभाव उसके सारे पार्ट पर पड़ जाता है जिस चीज में भी डालते हैं। तो इन्फ्यूज करते हैं, आप अपने आप को इन्फ्यूज करते हैं, गुड क्वालिटी से इन्फ्यूज करेंगे तो स्वाभाविक यू विल ग्रो। लाइबिलिटी, गांव घर के लोग भी जो होते हैं, इवन गांव घर के लोग भी इसका खूब यूज करते हैं। और ये लाइबिलिटी जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपका किसी चीज के प्रति जो है, वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए। लाइबिलिटी है, अगर आप अपनी टीम के लिए लाइबिलिटी है, मतलब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ समय के लिए ऐसा कहा जाता था। जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के बारे में नाम नहीं लेना चाहेंगे तो वो उनको लाइबिलिटी कहा जाता था कि अरे अब ये तो लाइबिलिटी, टीम पर तो लाइबिलिटी के रूप में मतलब परफॉर्म नहीं कर रहा और टीम का पार्ट बना हुआ है, तो लायबिलिटी। दूसरा एक और मीनिंग हो सकता है इसका, देखिए कि अगर किसी का पैसा आप धारे हुए हैं, कोई कंपनी किसी का पैसा धारे हुए है किसी कंपनी का, तो अमाउंट दैट यू ओज, है ना, या अमाउंट दैट एनी कंपनी ओज, ओके, तो वो है, वो भी लायबिलिटी है। टेक ओवर करते हैं किसी चीज को, इट कम्स मतलब उसका शेयर ले लेते हैं आप, है ना? टेक ओवर करते हैं आप, है ना? तो उस पर कंट्रोल आप स्थापित कर लेते हैं किसी कंपनी पर, तो वो टेक ओवर हो गया आपका। नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। टेक ओवर बिड होता है उसका, किसी भी कंपनी को आप कंट्रोल में लेते हैं उसका शेयर खरीद करके, तो टेक ओवर बिड जो होगा फॉर कंपनी के लिए जो टेक ओवर बिड होता है वो जो होता है। सो अगर हम यहाँ पर पेपर की बात करें, है ना, तो आज का हेडलाइन एक ही रहते हैं दोस्तों, है ना? गवर्नमेंट टू वेट फॉर एक्सपर्ट व्यू ऑन बूस्टर डोज जैब्स फॉर चिल्ड्रन। देखिए यहाँ गौर से देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है ना? Government to wait for expert view. Okay, the government will wait for what? Expert view. So government is to wait for expert view. Government will wait for expert view. Okay, government is going to wait for expert view. Okay, government will be waiting for expert view. ऑन बूस्टर डोज, किस चीज पर एक्सपर्ट व्यू, किस चीज पर एक्सपर्ट का जो राय हो किस चीज पर, ऑन बूस्टर डोज। आप जानते हैं 2 डोज आपको मिल चुका है कोरोना का जो है, तो आप बूस्टर डोज लेना चाहेंगे तो मतलब और आप इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं एक और डोज लेकर के, तो बूस्टर डोज, है ना? बूस्टर डोज जैब्स फॉर चिल्ड्रन, या फिर बच्चों के जो है ना, जो इंजेक्शन है, जैब्स मतलब इंजेक्शन जो है, उस पर भी सरकार जो है लेगी, एक्सपर्ट की रह लेगी, है ना? एक्सपर्ट का अगर हम हेल्थ मिनिस्टर सेज इट्स नॉट बी हरीड और पॉलिटिसाइज्ड। यहाँ पर देखिए अब दोस्तों, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा इट्स नॉट बी हरीड, मतलब जल्दबाजी नहीं किया जाना चाहिए या पॉलिटिसाइज नहीं, किसी चीज को राजनीतिक रंग नहीं दीजिए, तो इट शुड नॉट बी हरीड और पॉलिटिसाइज, राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए या इसको जल्दबाजी नहीं दिखाया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ अगर हेडलाइन की बात करें तो देख लीजिए क्या लिखा है, गवर्नमेंट सिक्स दिस करोड़ टू क्लियर एयर इंडिया डेट। ये जो डेट है, कर्ज है, डीबीटी डेट है, ओके, कर्ज, तो सरकार मतलब मांग रही है, खोज रही है, सरकार को जरूरत है इस सेंस में। गवर्नमेंट नीड्स दिस करोड़ टू क्लियर एयर इंडिया डेट, ओके। नीड्स और 6 में तो डिफरेंस आप समझ ही रहे हैं, यहाँ मांग रही है, ओके। किससे मांगेगी? तो भाई पार्लियामेंट से मांगेगी, वो गवर्नमेंट को जरूरत होगा तो वहां पर ये देखिए ग्रांट अगर हो जाता है तो ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर हम इसको पहले इसको पढ़ लें, पहले इसको मैं पढ़ देता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं। हमें रहता है जल्दबाजी में, टाइम कम होता है तो हम थोड़ा फास्ट करने लगते हैं चीजों को। एनी डिसीजन ऑन कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर डोज और वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन would be strictly based on the recommendation made by the expert committee looking into the matter। देखिए दोस्तों, इतना स्पीड में तो आप नहीं पढ़ना चाहिए एक टीचर को बच्चों को समझाने के लिए।
एनी डिसीजन ऑन, कोई भी डिसीजन ऑन कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर डोज, मतलब कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर डोज जो है, कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर डोज जो है इस पर, या वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन, या ये और मतलब क्या होता है दोस्तों, या होता है वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन, चाहे वो वैक्सीन बूस्टर डोज की बात हो या इसकी बात हो, तो उस पर कोई भी डिसीजन होगा, वुड बी स्ट्रिक्टली, होगा कठोर रूप से किस चीज पर आधारित होगा, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, सिफारिश करता है ना, कौन सिफारिश करेगा, मेड बाय द एक्सपर्ट कमिटी, जो है ना, वो किस चीज पर बेस्ड होगा दोस्तों, वुड भी होगा, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली छोड़ दीजिए, स्ट्रिक्टली मतलब जानते ही हैं, करे रूप से, है ना, इसको अगर छोड़ करके हम इस पढ़ते हैं, वुड बी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, वो सारा चीज किस आधार पर होगा दोस्तों, उस रिकमेंडेशन पर, मेड बाय द एक्सपर्ट कमिटी, जो कि एक्सपर्ट कमिटी करेंगे, लुकिंग इनटू द मैटर, है ना, वो उसको मैटर को देखते हुए, दिस डिसीजन कुड नॉट बी हरीड, ये डिसीजन जल्दबाजी नहीं किए जाने को है ना, नहीं किया जाना चाहिए, और पॉलिटिसाइज, इसको पॉलिटिसाइज भी नहीं किया जाना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन प्योर साइंस, ये इट शुड बी बेस्ड ऑन, ये होना चाहिए किस चीज पर आधारित होना चाहिए दोस्तों, साइंस एंड नॉलेज पर होना चाहिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ये said on Friday. He was speaking in Lok Sabha at the end of इतना आवर डिस्कशन, इतने घंटे का जो है डिस्कशन हुआ था, उसके अंतिम चरण में वो बोल रहे थे, है ना, दैट बिगेन ऑन थर्सडे, अच्छा ये थर्सडे को शुरू हुआ था, ये जो स्पीकिंग डिस्कशन चल रहा था ऑन द पेंडेमिक एंड गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स, किस चीज पर बहस चल रहा था दोस्तों, पेंडेमिक महामारी पर, और गवर्नमेंट का जो इसके प्रति रिस्पॉन्स है ना, प्रतिक्रिया है, उस चीज पर बहस चल रही थी, तो 11 घंटे के जो है लगातार जो चल रही थी, किस दिन से वहां पर दिया हुआ था दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें, है ना, तो देखिए, टैक्स पेयर्स विल बी पेइंग, टैक्स पेयर कौन है, हम लोग टैक्स पे करते हैं, मान लीजिए जॉब में है तो टैक्स पे करते हैं, टैक्स पेयर्स विल बी, बहुत सारे लोग टैक्स प्रति बिजनेसमैन करते हैं, आप भी करते हैं, है ना, हम भी करते हैं, तो टैक्स पेयर्स विल बी ए पेइंग टोटल ऑफ इतना करोड़ फॉर डेट एंड other liabilities of Air India, according to the supplementary demand for grants tabled before Parliament on Friday. दोस्तों इसको समझिए, टैक्स पेयर भरेंगे, विल बी पेइंग मतलब भरेंगे इतना करोड़ रुपया, किस चीज के लिए भरिएगा, कर्जा के लिए, दूसरा और सारा जो है, ये जो जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी समझ लीजिए, है ना, भार जो है एयर इंडिया का जो है, किसका, डेट और लाइबिलिटी किसका है, एयर इंडिया का, अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट्री डिमांड, है ना, किस हिसाब से कहा जा रहा है, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स, अकॉर्डिंग टू द सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स, है ना, अनुदान के लिए, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स, सप्लीमेंट्री एडिशनल डिमांड हुआ है फॉर ग्रांट्स, टेबल्ड मतलब प्रेजेंट किया गया बिफोर पार्लियामेंट ऑन फ्राइडे, तो उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट्री डिमांड, अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट्री, वो जो सप्लीमेंट्री डिमांड है किस चीज के लिए, फॉर ग्रांट्स, अनुदान के लिए, जो को प्रेजेंट किया गया, कहां पर प्रेजेंट किया गया, पार्लियामेंट के सामने में, मतलब पार्लियामेंट के अंदर में मे के सेंस में, द गवर्नमेंट हैज सॉट, मतलब गवर्नमेंट ने मांगा है, यहाँ पर द गवर्नमेंट हैज सॉट के सेंस, द गवर्नमेंट हैज सॉट, पार्लियामेंट्स नॉट मतलब क्या होता है, अप्रूवल, हाँ भरिए, नॉट मतलब सर हिलाना, तो मतलब हामी भरना, द गवर्नमेंट हैज सॉट, भाई पार्लियामेंट हाँ करेगी तभी तो काम आगे बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट हैज सॉट, सिक्स सॉट आप V2V3 में यूज करते हैं, सिक्स सॉट, द गवर्नमेंट हैज सॉट पार्लियामेंट्स नॉट टू इन्फ्यूज ओवर इतना करोड़, पार्लियामेंट से कहा है कि आप मुझे खाली हाँ कर दीजिए, इतना करोड़ रुपया हम जो है इन्फ्यूज कर देंगे टू इट्स कंपनी को इन्फ्यूज कर देंगे, जो एयर इंडिया का ये सारा चीज जो है धारण करती है, लाइबिलिटी हो, डेट हो, सम कोर एसेट्स, उसको जो है ना, अब वो किससे लेगा, अंत में वो चार्ज कहीं बढ़ाएगा तो अंत में तो टैक्स पेयर्स को ही देना पड़ता है वो पैसा। दिस कंपनी वाज सेट अप टू क्लीन द एयरलाइंस बैलेंस, उस कंपनी को सेटअप किया गया था, किस कंपनी को दोस्तों बाद में चर्चा होगा, यहाँ पर कंपनी सिर्फ थोड़ा सा झलक मिला है, कि कंपनी को, कौन सी कंपनी, उसकी चर्चा हुई ही नहीं है इस पेपर में, है ना, बाद में से चर्चा हो, ठीक है ना। तो दिस कंपनी वाज सेट अप टू क्लीन द एयरलाइंस बैलेंस शीट, मतलब एयरलाइन का बैलेंस शीट था, उसको क्लीन करने के लिए सेटअप किया गया था, है ना, प्राइवेटाइजेशन करने से पहले, अहेड ऑफ मतलब के पहले, अहेड ऑफ इट्स प्राइवेटाइजेशन, आप जानते हैं कि इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो उससे पहले की बात है, एंड मेक इट अट्रैक्टिव टू बायर्स, है ना, क्योंकि बैलेंस शीट को भाई आप ठीक करो, इसके लिए कंपनी सरकार ने बनाया था, है ना, सेटअप किया था कि बैलेंस शीट को ठीक करो जिससे कि बायर्स आएंगे, खरीदेंगे, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, किसके लिए, बायर्स के लिए,
एट अ प्रेस मीट इन अक्टूबर, है ना, प्रेस मीटिंग में जो है अक्टूबर में, ये जो है ये फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है ना, मेरे को खुद पता नहीं है। सेक्रेटरी तुहिन पांडे सेड दैट, उन्होंने कहा कि नेट लायबिलिटी ऑन गवर्नमेंट आफ्टर इंडियाज प्राइवेटाइजेशन अमाउंट, सरकार के ऊपर जो है ना नेट मतलब कुल जो है लायबिलिटी जो है सरकार के ऊपर आफ्टर एयर इंडियाज प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेटाइजेशन करने के बाद जो है वो इतना रुपया आ रहा है। तो आप बताइए कि इतना रुपया किसके लिए, सो व्हाट इज द बैलेंस, इतना कोर फॉर, तो इतना करोड़ रुपया किस चीज के लिए, है ना, इतना करोड़ रुपये किस चीज के लिए, तो ये आप यहाँ तो इतना रुपया की बात कर रहे हैं, तो इतना ठीक है आपको मान लिए कि गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है, तो इतना किस लिए, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है कि द अमाउंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट लायबिलिटी, ओ इंटरेस्ट लायबिलिटी जो है ना, जो इंटरेस्ट लायबिलिटी है वो टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल या एयरक्राफ्ट लोन्स, एयरक्राफ्ट का जो लोन है, लीज रेंटल्स पर अगर आप विमान लिए हुए हैं, ओविंग्स जो भी कुछ धारण कर रहे हैं, ऑयल कंपनीज का भी तेल तो बढ़ाती है ना एयरलाइन भी, है ना, तो एंड टू द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट, जहां पर आप लैंड करते हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जहां हम लोग भी काम करते हैं, तो है ना कस्टम्स में, है ना, तो फ्लाइट जहां लैंड करती है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो होता है, तो उसका भी तो चार्ज देना पड़ता है, तो सबका ये जो है ना उसके लिए अतिरिक्त ये पैसा, तो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड फॉर द सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, तो दिस इज, यही है, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड, जो सरकार ने रखा है फॉर द सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, ए सोर्स क्लोज टू द डेवलपमेंट से, फुल सोर्स जो है ना, उन्होंने कहा है एज ऑफ अगस्त इतना, मतलब अगस्त इतना तक, एज ऑफ नाउ कहते हैं ना अब तक, एज ऑफ नाउ, तो एज ऑफ अगस्त इतना एयर इंडिया हैड ए टोटल डेट ऑफ इतना करोड़, एयर इंडिया का जो है टोटल कर्जा कितना था, इतना था, आउट ऑफ द ऑफ द टोटल अमाउंट, तो पूरा अमाउंट में से टाटा ने कितने कितना शेयर ले लिया है, इतना करोड़ का मान लीजिए टेक ओवर कर लिया था, द रिमेनिंग इतना करोड़ विल बी ट्रांसफर टू ए गवर्नमेंट बेस्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल एयर इंडिया, ये इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों ये था, ज्यादा मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि एक्सपर्ट आपको कोई बना नहीं देगा, बेसिक चीज आपको सिखा देगा, जिसको लगन होता है वही आगे बढ़ता है, ये सब कोई आसान, इतना आसान काम भी नहीं होता है ना, लेकिन लगन है तो बहुत आसान हो जाता है। हम लोग मान लीजिए ऐसा ज़्यादा क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं, थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, लेकिन डिपेंड करता है भूख के ऊपर। जान दोस्तों देखो, मरना तो है ही, तो डरना किस बात का, जब मरना ही है मान लीजिए, तो तकलीफ से क्यों डरना, और मतलब संघर्ष से क्यों घबराना, अरे दिन रात जो है सुबह सवेरे उठिए और एक सपना लेकर के जिंदगी के हर कदम को आगे बढ़ाइए, एक एक कदम आगे बढ़ाइए, और एक दिन देखेंगे आप बहुत अच्छे जीवन में जगह पर, काफी काफी संघर्ष के बाद जब कोई चीज आप पाते हैं ना दोस्तों, तो अपने ऊपर एक अपने से एक प्यार होता है मनुष्य को, खुद के प्रति एक लव सम्मान जगेगा आपको, यू विल वैल्यू योर सेल्फ, है ना, आपको जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। लेकिन जो मेहनत नहीं किया उसको वो कैसे खुद को लव करेगा इतना, तो खुद को लव, जब आप कुछ अचीव करते हो ना दोस्तों काफी संघर्ष के बाद, तब आपको एहसास होता है कि ओ, आप खुद को कहते हो थैंक यू डियर, यू डिड वेल, है ना। तो दोस्तों ठीक है, बातचीत जारी रहेगी, आप खूब अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों इसको हो सके तो इस सारे वर्ड को आप जो है ना एक बार घुमा देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, है ना, एक बार धीरे धीरे इसको देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, समय नहीं रहता है, ओके, अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा।